Everyone, join your hands, close your eyes, and get ready for the Omkaram. Sai Ram, sir. साई राम। तो सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है that I have to give you. So everybody listen carefully. As you know that your third assessment is going to begin from tomorrow. Means from 20th of January to 20th of almost February. It will go on. It will continue of different subjects at different time. So, what type of assessment will be done? You might be thinking there may be some questions in your mind. What will be asked? So, I have decided three tools that I will take to assess your knowledge. First tool is multiple choice questions. As usual, as we had already taken in the previous assessment. So, 20 marks multiple choice questions would be there, and the date I will tell you almost remember the date next Wednesday. I will take your test most probably on next Wednesday. Sir, MCQ. Yes, MCQ. And you must be knowing your syllabus. Again, I will let you know what is your syllabus. First chapter is algebraic expression and identities. Second one is visualizing solid shapes, and third one is exponents and power. Exponent. Okay, so these three chapters are coming in your assessment on the behalf of the knowledge provided to you. Assessment will be done. So first tool is MCQ, and the second tool is Viva. Viva means from these three chapters, I may ask any question, I may ask you to explain any topic, any subtopic of these chapters, and that you have to explain. And behalf of the behalf of your explanation, I will give you marks. Is that clear? Yes, sir. You may be given any question, you may be given Yes, sir. any topic. Suppose I gave you topic explain the third law of exponents, or I gave you the topic explain the law of exponents. Then you have to explain the laws of exponents. So like this, you may be given anything else. You must be well prepared. So it will go on every day. From tomorrow, I will start, and it will be random. Means you must prepare yourself, or you can. I will give you three chances to excuse. Suppose tomorrow I ask Adesha to explain something, and if Adesha says, "Sir, I am not ready," okay, I will give you next chance. Okay, but not more than two chances you will get. So be ready. Start your preparing yourself. Start preparing these chapters. You may get done on any day. And the third tool is that you have already completed, already done, but again you have to send it. You must have remembered that I gave you one homework to make a PDF based on visualizing solid shapes. How many of you remember that I gave you one homework to make a PDF? Yes, sir. What PDF you made? You made a school map, I think, and one or two Yes, questions sir. was there. Yes, sir. Okay, Yes, sir. you have already sent it. So, what I will do, I will give you one homework. Okay,
Now tell me one thing. But I am thinking that I must give you some new topic. So can you suggest me what is the topic to make a new PDF? You want to make a PDF on that chapter or on any other chapter? What do you think? Sir, any other chapter? Any other chapter? Which chapter should I take? You have three options: exponents and powers. Now tell me, um, all of you had submitted that PDF. Everybody had submitted. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Let me check कि उसमें क्या दिया था एग्जैक्टली आपको मिला क्या था। अब तो मैं ध्यान भी नहीं किसने क्या सबमिट किया था। तो टॉपिक आप डिसाइड करो या तो आपको बताओ। या आप एक काम कर सकते हो, नया बनाना चाहते हो या चाहते हो उसी वाले में मार्किंग करें हम जो हमने पहले दिया था। व्हाट डू यू थिंक? सर वही वाला। यस सर, वही वाला। आपको दोबारा भेजना पड़ेगा, हमारे मोबाइल में से तो पता नहीं कहाँ चले गए। तो हमारे यस सर, भेज यस सर, भेज देंगे। ईमेल पे भेज सकते हो यस क्या सर, भेज उसको? देंगे। यस उसको सर। ईमेल पे भेज दो। सर ठीक है, वो ईमेल जो मैप पहले भेजा था, यस। सर वो विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स का वही पीडीएफ। हाँ, नहीं उसमें ये है कि उस पे आप बना के भेजें। अगर आपको इन 3 चैप्टर में से किसी एक पे बनाना चाहते हो नया, तो वो नया भी बना सकते हो, वो भी भेज सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, आप एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को बहुत अच्छे से बता सकते हो, तो उस पे बना लें, उसको भेज दें हमको। टॉपिक में भी डिफरेंट। और जिनको लगता है कि नहीं मेरा वही बहुत अच्छा था, दैट इज ऑल्सो ओके। सर कब तक सेंड करना है आपको? ये आप इस महीने के लास्ट तक सेंड कर सकते हैं, 30th जनवरी। कट ऑफ डेट इज 30th जनवरी। Is that clear? Any doubt in your mind? You may ask now. सर किसी भी टॉपिक पर वीडियो बना के भेज सकते हैं। Out of these 3 chapters, यस सर। if you want to make a new PDF, you can make it of the topic of your choice from these 3 chapters. Okay? यस सर। And you can add additional यस सर। information also. Whatever is given in your NCERT book, it is not sufficient. You can add more additional knowledge from internet, from anywhere, जहाँ से भी आपको मिलती है एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्या आप दे सकते हैं इन ऑर्डर टू मेक इट मोर मीनिंगफुल, मोर नॉलेजेबल। जितना आप नॉलेज प्रोवाइड करेंगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। वही रटा रटाया सब जैसा बना दिया तो कुछ नहीं, लेकिन आप उसको थोड़ा सा अच्छे से बनाएं, एडिशनल नॉलेज दें, कुछ आप उसमें और फिगर बना सकते हो, कुछ डायग्राम बना सकते हो, ऐड करना चाहते हो। क्या पूछ रहे हो प्रांजल? सर कौन सी पीडीएफ बनाना है? तुम क्या लेट आए हो? नो सर। फिर कहाँ थे?
प्रांजल, हमने ये बोला है कि एक पीडीएफ हमने बनवाया था, है ना, और उसको आपने भेजा था हमको। तो हमको यहाँ पर एक आपका प्रेजेंटेशन लेना है कि आपने क्या किया। तो उसके लिए आप इन 3 चैप्टर्स में से किसी एक चैप्टर में कोई भी एक पीडीएफ फाइल बना सकते हैं। उसमें उस चैप्टर से रिलेटेड डायग्राम, इंफॉर्मेशन, जितनी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकते हो, जो भी एग्जाम्पल एक्स्ट्रा दे सकते हो, वो आप देख के उसको बनाइए, ठीक है। और वो हमको हमारे ईमेल पे भेज दें आप, और उसमें नाम जरूर लिखें अपना, या फाइल का नाम जरूर लिखें। फाइल नेम में अपना ही नाम लिखें तो वो उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। फाइल यस सर। अपना नेम लिख। सर जो 3 चैप्टर एग्जाम में आ रहा है। ये जो 3 चैप्टर एग्जाम में आ रहे हैं, उन्हीं में से एक पीडीएफ बनानी है। सर और किसी में से नहीं बना सकते? नहीं, और किसी में से नहीं। ठीक है, तो उसको हम आपके एज एक टूल कंसीडर कर लेंगे, उसको मार्किंग कर देंगे। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप उसमें बनाएं। और आपको नॉर्मली पैरामीटर्स तो मालूम ही है, उसमें एक टाइमली सबमिशन रहता है, एक नीटनेस रहती है, एक उसमें रहता है कि कितना एक्यूरेट आपने इंफॉर्मेशन दी है, जो बनाया है वो उसमें कितनी एक्यूरेसी है, कितने अच्छे से बनाया। तो वो सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। पैरामीटर्स वही है जो लास्ट टाइम बताए थे, तो वही पैरामीटर आपको फॉलो करने हैं। इसके अलावा किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। मेरी बात समझ में आ गई? इफ इट इज क्लियर देन टाइप ऑल क्लियर, एसी, टाइप एसी। Adisa, Kushi, Radhika, only 3 students got my point. Devang, Monica, Anisha, Nandini, good. Akshita, Parth, Pooja, Kanjan, good. Okay, so almost students are getting what I have said just now. So I think it is enough to make you understand. Or what else? What was going on in the previous class? Had we completed? Yes, sir. Okay, we have completed that exercise. If you still want to ask anything, anything from chapter exponents and power, any question, any concept, any doubt in your mind, you may ask. I am giving you 1 minute to think. If you have any doubt, any query, anything else you wish to know, I will explain here. I think I had explained all the questions. सर Yes. सर एक्सरसाइज 12.1 में 5th क्वेश्चन फिर से समझा दीजिए। Okay, very good. 5th question. यस सर। Okay. Let me connect my mobile. पूजा ने पूछा क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच m रेज टू द पावर, सॉरी 5 रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई 5 रेज टू द पावर कितना, -3 इक्वल्स टू 5 रेज टू द पावर 5। ओके, तो देखो आपको पता है डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ये डिवीजन जो है वो इस टाइप से लिखा हुआ है,
इक्वल टू 5 रेज़ टू दी पावर 5। तो डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो ये हो जाएगा 5 पावर m माइनस माइनस 3 इक्वल टू 5 रेज़ टू दी पावर 5। पूजा समझ में आ रही है इतनी सी बात? कौन सा फॉर्मूला लगा? Yes, sir. ए रेज़ टू दी पावर m, ए रेज़ टू दी पावर n, ये हो जाएगा ए रेज़ टू दी पावर m माइनस n। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो अब ये नेगेटिव नेगेटिव दो बार आ गया, ये नेगेटिव नेगेटिव दो बार आ जाएगा तो क्या हो जाएगा मालूम है ना? क्यों पूजा? Yes, sir. अगर Sir, नेगेटिव plus. यस प्लस आ जाएगा। भाई गांधी जी ने कहा था कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल कर दो, लेकिन अब दूसरा थप्पड़ मारे उसके बाद नहीं कहा था कुछ। तो अगर तुमने आगे थप्पड़ मारा दो बार तो तीसरी बार तुम्हारे ऊपर थप्पड़ आ जाएगा, ठीक है ना? तो ऐसे ही दो बार नेगेटिव हो गया तो ये पॉजिटिव हो गया, तो ये हो जाएगा ए एम प्लस 3 इक्वल टू 5 रेज़ टू दी पावर m। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो बेस है ना, बेस, इस बेस को कैंसिल कर सकते हैं ऐसे। हमारे पास बचेगा m प्लस 3 इक्वल टू 5 आ जाएगा, ये 5 है पावर। तो ये थी 5, ये 5, m इक्वल टू 5 माइनस 3, आंसर हो गया 2। m की वैल्यू ही निकालनी थी। तो ये समझ में आ गया सबको क्वेश्चन? Yes, sir. ओके गुड। तो अभी और कोई क्वेश्चन किसी को? एनी डाउट? चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, जो मैंने समझाया इसी पे बेस्ड है। एन की वैल्यू बताओ जरा कितना आएगा, सॉल्व करें सभी बच्चे। So 2. किसने बोला है? Yes, sir. ओके ठीक है, करेक्ट। और बाकी बच्चे भी निकालें। सर 2 ही आएगी। हाँ 2 आएगी। ओके भाई, दो लोगों ने कह दिया 2 तो मानना पड़ेगा, मेजोरिटी के साथ जाना पड़ेगा। और बोलो। Yes, sir. 2m आ रही है. 2 2 आ Sir, रही है। m. m नहीं आएगा बेटा, m की वैल्यू 2 आएगी। Yes, sir. देखो ये हो सर जाएगा, सर आ ये गया m की वैल्यू 2 आएगी है। ये आ जाएगा, है ना? ये आंसर हो जाएगा। अच्छा चलो अब देखते हैं हम कितने बच्चे बता पाते हैं। अब बताओ जरा। Sir, -2. वेरी नाइस, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। Sir, -2 यार. कैसे बताओ पूरा। सर वो 3/2 को रेसिप्रोकल कर दिया था तो वो m माइनस में आ जाएगा नीचे. एक्सीलेंट, ताली बजा दो भाई पूजा के लिए सब लोग। एक्सीलेंट। और बाकी बच्चे हैं कि नहीं यहाँ क्लास में? सर -2। अरे अच्छा,
कहाँ चला गया? अच्छिता, अच्छत, खुशी, कहाँ गए ये बच्चे? सर यहीं पे हूँ। तो आवाज नहीं आ रही। यस प्रांजल सर। नहीं बोलता आजकल, कहाँ रहता है प्रांजल? प्रांजल है कि नहीं? यस सर। प्रांजल अपने सॉल्व नहीं करता, कहाँ चला गया बेटा? पढ़ने आए हो क्या? अब बताओ जरा, कितने बच्चे कर पाते हैं, देखते हैं हम। सर 1 शायद। somebody saying 1, someone saying 5, दो आंसर कैसे होंगे? सर -3। -3 कैसे किया, मुझे बताओ जरा। सर ये 2/3 को मतलब 4/9 में किया, तो फिर उससे मतलब 5 से तो 2 पावर चला जाएगा, क्योंकि अगर 2/3 को -4/9 कन्वर्ट करेंगे। सही नहीं लग रहा मुझे। और किसी ने निकाला? प्रांजल, सर -1। नहीं अलग अलग क्यों आ रहा है? देखो चलो मैं बताता हूँ। -2/3 पावर 5। देखो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दूं तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। ये आ गया इज इक्वल टू, यहाँ पर ये सर अब दोनों सेम हो गए। हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर पावर 6। ठीक है ना? ये हो जाएगा सर माइनस। -7। हाँ, m इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। अच्छा चलो, ये तो हो गया। और कोई क्वेश्चन इसके अलावा डाउट किसी को? नो? सर सर एक क्वेश्चन है, बाय व्हाट नंबर शुड
-3/2 की पावर -3 be divided so that the coefficient may be 4/27 -2. ये सही लिखा मैंने, 4/27 - 2 ऐसे ही है। इसने नो पूछा सर, सर मैंने अक्षत हाँ सर -3/2 और सर उसकी पावर है -3 डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू 4/27 उसकी पावर है -2। अच्छा पावर है ये। तो देखो जो स्टेटमेंट बोला है उसके अकॉर्डिंग ये कह रहा है बाई व्हाट नंबर दिस शुड बी डिवाइडेड। मान लो लेट द नंबर बी एक्स, एक्स से डिवाइड करेंगे। -3/2 को हमने मान लिया एक्स से डिवाइड किया तो जो आउटपुट है, जो रिजल्ट है वो 4/27 - 2 आएगा। तो इसमें एक्स की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये देखो -3/2 इसका रेसिप्रोकल कर दो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं। इसको कर दें 2/-3 की पावर ये होगी +3 और डिवाइडेड बाई एक्स और ये हो जाएगा 2/3। 4/27 की पावर कितनी है, -2 है -3 है। सर -2। -2 ठीक है, कंपेयर नहीं करेंगे इसको। इधर ये कर लिया और इसको ऐसा कर लो, इसको कर लो 27/4 की पावर 2। ठीक है ना। अगर हम अंदर की वाली चीज को रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर अगर नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे दोनों जगह नेगेटिव पावर आ रही थी, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैंने इसके अंदर वाली चीज को रेसिप्रोकल कर दिया। 2 है तो 1/2 कर देंगे, 1/2 तो 2 कर देंगे। ये -3/2 ये 2y-3 हो गया, वो 4/27 था 27/4 हो गया, इसकी पावर आ गई 2। यानी कि पावर हमने पॉजिटिव कर ली। क्यों? क्योंकि नेगेटिव पावर से हम कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। हम पॉजिटिव पावर होंगे तब कुछ उसमें ऑपरेशन कर पाएंगे, तब कुछ ऐड मल्टीप्लाई कुछ सोच पाएंगे। नेगेटिव रहेगी तो हम नहीं कर सकते। तो अब देखो इसको भी हम क्या करेंगे, ये 3 बार है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 2 × 2 नीचे -3 2 -3 × -3 और मल्टीप्लाई बाई क्या रहता है एक्स, नहीं सर डिवीजन में आ रहा है ना एक्स। राइट हैंड साइड में कितना आ रहा था 27/4, 27/4 पावर 2। तो ये आ जाएगा 8/27 और डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल्स टू 27/4 × 4। अब इसको देखो क्या करो, -8/27 ये आ जाएगा एक्स यहाँ 27/27 4 × 4। तो ये आंसर आ जाएगा 27/27 × 27 × x = 8 × 16। ठीक है ना, ऐसी जो वस्तु आ जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा।
सर 19,683 divided by sir 128. Any other question? अब इसके बाद हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रपोर्शन, है ना। तो अगले चैप्टर को आप थोड़ा समझेंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रेशियो, इनवर्स प्रपोर्शन। ये आ गया आपका चैप्टर नंबर 13, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। इसका मतलब है टुडे वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डायरेक्ट प्रपोर्शन एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। सी देयर आर टू, suppose there are two quantities, this is quantity 1, this is quantity 2. Suppose quantity, first quantity is x, second quantity is y. Leave it, do not take x and y. Let us take उनके मुकद्दर के कोन whose mic is on. Now see, we have two types of quantities, quantity x and quantity y. Suppose I am taking price in one quantity and liter in another quantity. See, अगर हम पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो पेट्रोल की प्राइस, अगर हमारे पास 1000 रुपीज है और हम पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो 1000 रुपये में जितना पेट्रोल आएगा वो किस पर डिपेंड करेगा, उसकी प्राइस पर। जितना प्राइस कम होगा उतने लीटर ज्यादा आएंगे, जितने प्राइस ज्यादा होगा उतने लीटर कम हो जाएंगे नहीं। डू यू एग्री विद मी? अगर मैं पेट्रोल की 1000 रुपये की पेट्रोल लेने जा रहा हूँ तो पेट्रोल की प्राइस जो है उस पर क्या डिपेंड करेगा, कितने लीटर पेट्रोल आएगा। जितना ज्यादा प्राइस होगा पेट्रोल उतना ही कम आएगा। यस और नो? इफ यू आर गेटिंग माय कॉन्सेप्ट। और जितना प्राइस कम होगा पेट्रोल लीटर यानी उतने ही लीटर ज्यादा आएंगे। दूसरा, मान लो जितनी ज्यादा मैं क्वांटिटी लूंगा उतनी ज्यादा प्राइस होगी, कॉस्ट होगी उसकी। अगर मैंने 10 कॉपियां खरीदी तो उनकी जो प्राइस होगी मान लो 100 रुपीज है, और अगर मैं 20 कॉपी खरीद लेता हूँ तो उनकी प्राइस क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो स्पीड और टाइम में देखें, जितना ज्यादा स्पीड बढ़ाएंगे उतना टाइम घटेगा या बढ़ेगा? अगर हम सर घटेगा। घटेगा।
अगर हम स्लो चलाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा पहुंचने में, तेज चलाएंगे तो टाइम कम लगेगा पहुंचने में, है ना। ऐसे ही फूड है, जितने ज़्यादा लोग खाना खाएंगे उतने कम दिन चलेगा, जितने कम लोग खाना खाएंगे उतने ज़्यादा दिन चलेगा। तो यहाँ पर आप ये देखें कि रिलेशन किस टाइप का है, जो रिलेशन है वो किस टाइप का है। प्राइस और लीटर में कैसा रिलेशन था, मैंने प्राइस बढ़ाया तो जो लीटर थे वो क्या हुए, कम हो गए या ज्यादा हो गए? ज्यादा हो गए। कैसे ज्यादा हो गए बताओ? 1,000 रुपए थे हमारे पास, पेट्रोल डलवाना था हमको, प्राइस बढ़ गई, 100 रुपये लीटर हो गया, तो अब 1,000 रुपये में लीटर कितने कम आएंगे, कम आएंगे या ज्यादा आएंगे? और अगर प्राइस घट जाएगी तो लीटर बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ जाएंगे? डू यू सी द डिफरेंस? नो, अभी मेरी बात नहीं पकड़ पाए। एक क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं, इसको बढ़ाएंगे तो ये कम हो जाएगा, इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ जाएगा, इसको बढ़ाएंगे तो ये कम हो जाएगा, इसको बढ़ाए तो ये कम हो जाएगा। दिस इज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, टू टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, इसी को हम बोलते हैं, एक को बोलेंगे डायरेक्ट वेरिएशन और दूसरे को बोलेंगे इनवर्स। इनवर्स वेरिएशन, आप देख रहे हो डायरेक्ट में क्या हो रहा है, एक क्वांटिटी जैसे एक्स है, ये वाई है, एक्स को मैंने बढ़ाया ये भी बढ़ गया। इसमें क्या हो रहा है, इनवर्स में एक्स और वाई है, एक्स को बढ़ाया ये घट गया, घट गया कि नहीं? अगर मैंने स्पीड बढ़ा दी तो टाइम कम हो जाएगा कि नहीं? तो इनवर्स वेरिएशन हो गया। अगर मैं 10 लोगों का खाना खिला रहा हूँ, जल्दी खाना खत्म हो जाएगा, कम दिन चलेगा, 2 लोग खाएंगे तो ज़्यादा दिन खाना चलेगा, तो इन्वर्स हो गया। डायरेक्ट में क्या है, मेरे को 4 पेन है, उनकी कॉस्ट है, 4 पेन खरीदूंगा तो उतनी कीमत देनी पड़ेगी, 10 खरीदूंगा तो ज़्यादा कीमत देनी पड़ेगी। यानी जब मैंने पेन बढ़ाया उधर कॉस्ट बढ़ गई, पेन घटा दूंगा तो कॉस्ट भी घट जाएगी, घटेगी कि नहीं बताओ जरा सोच के। तो 2 टाइप का वेरिएशन है, एक होता है डायरेक्ट वेरिएशन, एक होता है इनवर्स वेरिएशन किसी भी क्वांटिटी में। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट पकड़ लिया, ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो इस समझना चैप्टर में तो कुछ भी नहीं है, तो बच्चों का गेम है, आप 1 मिनट में ही पूरा कर लोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना, बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। वो आया कि नहीं आपको? अगर आपको समझ आ गया हो टाइप वाई, और ऐसे में बोलते मैं क्वेश्चन पूछूंगा अभी, क्या समझ में आ गया? नहीं समझ में आया अभी? मुझे लग रहा है कि नहीं समझ में, आधे हिसाब को तो समझ में आया, बाकी को तो समझ में नहीं आया। तो चलो कोई बात नहीं, बाकी को कल समझाएंगे हम, है ना। तो कल की क्लास में इसके आगे इंटरव्यू करेंगे तब आपको समझ में आएगा। ये थोड़ा सा पढ़ लेना है चैप्टर को, फिर अच्छे से आ जाएगा। लेकिन कल सारे प्रेजेंट रहें, कल मैं दोबारा से एक आपको समझाऊंगा। तो आदिशा शांति पाठ कराओ। Everyone join your hands and close your eyes for Shanti Path. Om Shanti Shanti Shanti. Sairam. सायराम सर। Sairam sir. Sairam sir, thank you sir. Mm.